Good morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7 maths and our chapter is lines and angle. Student, in our previous video we learned about lines and angles. Okay. In this chapter we learn a line. What is a line? A line is a collection of points going endlessly in both the directions. Okay, so we can say that it's a line. Okay, what about line segment? A line segment is a part of a line. It has two endpoints. The line segment given below line segment is denoted by this, means it has two endpoints. Okay, now next ray. A ray is also part of line. It has one endpoint called the initial point and goes endlessly in one direction. Okay, what do you mean by angle? Two rays having the same initial point from an angle. An angle can also be formed when lines or line segment meet or intersect each other at a point. Okay, so we can say that it's a line, it's make an angle. Okay, so in this chapter we learn some type of angle, suppose acute angle, obtuse angle, right angle. An angle is measured in unit called degree. Angle are classified according to their measure. Okay, understand? So what is acute angle? Acute angle is measure of acute angle is more than 0 degree but less than 90 degree. Okay, so we can say that it's an acute angle. Okay, now what is right angle? Exact 90 degree is called right angle. More than 90 degree and less than 180 we can say that it's a obtuse angle. Okay, what is straight angle? Straight angle is exactly 180 degree. Okay, what about reflex angle? Greater than 180 and less than 360 is called reflex angle. Okay, and complete angle is measure is exactly 360 degree. Okay, understand? And then we can learn about complementary angles and supplementary angle. What is complementary angle? Complementary angles are, so what is complementary angle? When the sum of measure of two angles is 90 degree, then we can say that it's a complementary angle. Okay, the angle are called complementary angles. Understand? When the sum of two angles is measure 90 degree, then we can say that it's a complementary angle, or we can say that two angles are complementary if the sum of their measure is 90 degree. Okay, and we learn about supplementary. What is supplementary angle? Two angles are supplementary if the sum of their measure is 180 degree. Okay, now we can learn vertically opposite angle. If two lines intersect each other, it makes 4 angle, and 1 and 3, 4 and 6, 2 and 4 are called vertically opposite angle. Angle 1 is vertically opposite to angle 3, angle 2 is vertically opposite to angle 4. Understand? So it's called vertically opposite angle, and vertically opposite angle is always equal in measure. Okay, when two lines intersect to each other, vertically opposite angle is equal in measure. Okay, understand? Now in this chapter we learn adjacent angle. What is adjacent angle? An adjacent angle are angle they have common vertex and they have common arm. So we can say that it's an adjacent angle, and the non-common arm are on either side of the common arm. Okay, such pair of angle are called adjacent angle. Adjacent angle have a common vertex and a common arm but no common interior point. Okay, so we can say that it's an adjacent angle. And we can learn about linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common side are opposite ray. Okay, so
we learn so many new words in this chapter. Okay, that is complementary, supplementary, adjacent pair, or vertically opposite angle, or linear pair. You have to remember these terms. Okay, if you remember these terms, then you are understood the geometry. Okay, now and onward means आज के बाद जो आपकी नई क्लासेस आएंगी 8, 9, 10, वहाँ पर आपको ये सारी टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी, अंडरस्टैंड। और वो आपको हर जगह पर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपको ये याद रखना है। व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज़ लीनियर पेयर, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री, एंड व्हेन द एंगल इज़ राइट एंगल, व्हेन द एंगल इज़ straight angle, or they are complete angle. See, 90 degree means exactly right angle means exactly 90 degree, straight angle means exactly 180, complete angle means exactly 360. Okay, understand? And if we talk about acute, then acute is greater than 0 and less than 90. ओके, वो 89.9 भी हो सकता है, 89.999 भी वो एक्यूट एंगल में ही आएगा। इफ़ द एंगल इज एक्जैक्टली 90 डिग्री, देन यू कैन से दैट इट्स अ राइट एंगल, ओके। एंड greater than 90 and less than 180, we can say that it's an obtuse angle, okay. And greater than 180 and less than 360, it's a reflex angle, okay. So these are new terms we have learned in this chapter, and I hope you are completed exercise 5.1, okay, in your notebook. Yesterday we have completed exercise, and I will give you the homework question number 13 and 14. I hope you are completed, okay. Now because no one is tell me any doubt, okay, so मैं उसे लेकर चल रही हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया है, आप सबको समझ में आ चुका है और आपने नोटबुक में वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो मुझे ये लगेगा कि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। सो वी कैन गो अहेड। हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ पेयर ऑफ लाइन्स। सी दिस आर, ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में आपको सो मेनी न्यू टर्म्स आपको पता चलेंगी, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज न्यू टर्म्स। इफ़ यू आर नॉट रिमेंबर दिस टर्म्स, देन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यू हैव सो मेनी डाउट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are you doing? You are doing remember these terms, ओके। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, इन टर्म्स को रिमेंबर करना है, याद करना है अच्छे से, और याद करके उसको क्या कर लेना है, अपने माइंड में बैठा लेना है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, हम काउंटिंग करते थे, काउंटिंग अब हमारे माइंड में बैठ गई, वैसे ही अब आपको ये जो टर्म्स हैं, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री, व्हाट इज़ linear pair, what is adjacent angle, what do you mean by vertically pair, okay, understand? So you are understand, if you are remember these things, so geometry is very easy for you, okay, understand? Now our next term is pair of angles or pair of lines, okay. If you talk about pair of line, so see there are so many types of lines, okay। हमने लाइंस के बारे में पढ़ा। लाइंस जो हैं वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो लाइन, अगर मैं दो लाइंस की बात करूँ कोई भी, या तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की ये साइड और ये साइड एक दूसरे की कैसे पैरेलल। अगर आप इसे आगे तक भी बढ़ाते जाओगे दोनों साइड पर, तो भी ये एक दूसरे से मिलेगी नहीं, ओके। सो इट्स कॉल्ड अ पैरेलल लाइन, ओके। एंड द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन इज़ रेलवे ट्रैक, ओके। रेलवे ट्रैक की जो दो पटरियाँ होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है, ओके। दे आर, एंड यू कैन से रोड पर भी आपको दो साइड दिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दो एंड होते हैं रोड के, ओके। एंड इट विल बी पैरेलल,
ओके, सो रोड भी कभी भी एक दूसरे को मिलते नहीं है, वो साइड भी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है. दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. ओके, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन्स? सो पैरेलल लाइन do not meet to each other in any point. Okay, so it's called a parallel line. Okay, and second type of line is intersecting line. Okay, now first of all अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करती हूँ तो पैरेलल लाइन हम बोलते हैं कि दो लाइन, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पर भी कोई से भी पॉइंट पर कट नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी, डेट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. ओके, and parallel line and intersecting line both are important in this chapter. Okay, so first of all we learn parallel line. What is parallel line? If line is parallel, they do not meet to each other at any point. Okay, now we can talk about intersecting line. What is intersecting line? See, if two lines cut intersect at a point, अगर दो लाइन में ऐसे ही कोई दो लाइन खींच रही हूँ और वो कहाँ मिल रही है, कोई एक पॉइंट पर मिल रही है. ओके, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट और कट एट वन पॉइंट, then we can say that is intersecting line, and this point is called point of intersection. This point is called point of intersection. Okay, understand? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? So हम क्या बोल रहे हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर तो हम उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड जो पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर दिस थिंग, टू टाइप ऑफ लाइन, फर्स्ट इज पैरेलल, अनदर वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, अंडरस्टैंड? So remember this thing. Okay, now our next topic is transversal. What is our next topic? Next topic is transversal. Okay, it's very interesting and very important. Okay, so and very easy also. Okay, so what do you mean by transversal of any lines? Okay, so if we talk about a transversal, before we talk about a transversal, first of all we know what is transversal. Okay, हमें पता है दो लाइन जब एक दूसरे को मीट करती हैं तो हम उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, आपने इस टाइप का रोड देखा होगा बच्चों. ये आपका अगर रोड जा रहा है, दिस इज़ योर, अगर आपके घर के आसपास कहीं देखा हो इस टाइप से रोड है और वो एक रोड इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, दे आर गोइंग डिफरेंट डायरेक्शन. और सी हियर जो रोड है वो पैरेलल है. मैंने आपको क्या बोला, उसकी दो साइड से. ओके, सी इन दिस रोड देयर आर टू साइड, दिस वन, एंड दिस टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, बट दीज पैरेलल लाइन्स आर कट इन, देखो ये जो दूसरी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन क्या कर रही है, पहली वाली लाइंस को कट कर रही हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ लाइंस, अगर हम बोल रहे हैं दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, फिर हमने बात करी पैरेलल लाइन की, जो आपको दिख रहा है ये रोड पर. ओके, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई. अब व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? सो सी, इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल पढ़ने से पहले हमने क्या देखा, रोड, और रोड को क्रॉस करती हुई रोड की लाइंस. ओके, सो सी हियर, these are two lines. See these two lines, line L and line M. Okay, and these two lines cutted by line P. ओके, लाइन P जो है वो वहाँ पर उसे दो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है. L को एक पॉइंट पर काट रही है, सपोज वी कैन से इट A एंड B. ओके, सो लाइन P cuts the line L and M at a different points, distinct point. Okay,
So we can say that it's a transversal. Okay, what is transversal? Transversal cuts two line L and M so at distinct point. Okay, a line that intersect two or more line at distinct point is called a transversal. See here, यहाँ पर ये तो ट्रांसवर्सल है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, बट दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल बिकॉज ये अलग अलग पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, ये कहाँ पर कट कर रहा है, सेम पॉइंट पर कट कर रहा है. ओके, सो इट्स नॉट अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, ये वाला होगा, जहाँ पर आपको एक लाइन दो अलग अलग लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है. सपोज इस टाइप से कोई 3-4 लाइन्स हैं, उस पर भी अगर कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है, अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द ट्रांसवर्सल. ओके, अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. ओके, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. नाउ वी कैन टॉक अबाउट, अगर मैंने बोला ये ट्रांसवर्सल है, अगर ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को कट किया है तो वहाँ पर हमें टोटल 8 एंगल्स मिलेंगे. सी हियर आर टोटल 8 एंगल्स इज देयर. ओके, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, एंड P कट द लाइन L एंड M एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, सो हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. टोटल 8 एंगल्स हमें मिल रहे हैं हर एक लाइन के कट होने पर. जैसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो यहाँ हमें कितने एंगल्स मिलते हैं बेटा, 4. सो यहाँ पर अगर मैं P और L की बात करूँ तो मुझे 4 एंगल्स मिल रहे हैं. P और M की बात करूँ तो मुझे अगर अलग से 4 एंगल्स मिल रहे हैं. ओके, सो 4 and 4 8 एंगल्स टोटल मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर. ओके, अब व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस एंगल्स? नाउ वी हैव लर्न व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस एंगल. हमको पता है अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या मिलते हैं, एंगल्स मिलते हैं. ओके, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें टोटल 4 एंगल्स मिलते हैं. ओके, एंड वी नो देयर आर सम कनेक्शन, देयर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयर आर लीनियर पेयर ऑल्सो, देयर आर एडजेसेंट एंगल ऑल्सो. सो आपको इस फिगर में, अगर आप कोई फिगर को, जस्ट मिनट, इस फिगर में आप इस लाइन को अगर नहीं देखें, इस लाइन को नहीं देखना है आपको, अगर खाली आप लाइन L और लाइन P को देखते हैं तो आपको टोटल कितने एंगल्स मिल रहे हैं, 4, एंड दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, इफ these are intersecting line then angle 2 and angle 3 are equal because we know that vertically opposite angles are equal and angle 1 and angle 4 are equal. सो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, एंगल का जो साइन है, देखो एंगल 1 का जो साइन है और एंगल 4 का जो साइन है वो सिमिलर है. आपको ज्योमेट्री में साइन पढ़ते भी आना चाहिए. एंगल 2 एंड एंगल 3 का साइन सेम है, मीन्स दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड इफ दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल देन इट इज़ इक्वल. ओके, अंडरस्टैंड. ये तो हो गई बात हमने जो अभी तक पढ़ा था. ओके, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल के बारे में. ट्रांसवर्सल हमने किसे कहा, जब एक लाइन दो डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. अंडरस्टैंड. एक लाइन दो लाइंस को, दो डिफरेंट लाइंस को, मीन्स एक लाइन हमने बोला P, दो डिफरेंट लाइन L एंड M को वो डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल. ऐसा नहीं है कि दो ही लाइन को कट करें, हो सकता है वो 3 लाइन हो सकता है वो 4 हो सकता, मीन्स 2 और 2 से ज़्यादा लाइंस को अगर कोई एक लाइन कट करती हुई जाती है तो वो डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ओके, अंडरस्टैंड. So it's very important point. What is transversal? When a line intersected two or more line at a distinct point, distinct मतलब different point, then we can say that it's a transversal. Okay, suppose 2 lines are given, how many transversal can you draw for these line? अगर दो lines given है तो हम इन 2 line पर कितने transversal बना सकते हैं. Suppose these 2 lines are given, आप यहाँ भी ट्रांसवर्सल बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कितने भी ट्रांसवर्सल बना सकते हो. ओके,
Then if a line is a transversal to 3 lines, how many points of intersection are there? अब अगर 3 लाइन्स को कोई एक लाइन कट कर रही है, 3 लाइन्स को कोई एक लाइन कट कर रही है, जस्ट मिनट, ओके, तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? 3। जब 2 लाइन को कट कर रही थी तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिल रहे थे। जब 3 लाइन्स को कट करेगी तो हमें कितने एंगल्स मिलेंगे? टोटल 12 एंगल्स मिलेंगे। ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रांसवर्सल इन योर सराउंडिंग। अब अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको रोड का एग्जाम्पल दिया, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जो आपकी टाइल्स लगी होती हैं, ओके, टाइल्सें कैसी रहती हैं? पैरेलल रहती हैं। बट जब एक टाइल्स को दूसरी टाइल्स को उसके पास में रखते हैं तो आपको वो ईजिली दिखेगा, वो ट्रांसवर्सल। ओके, अंडरस्टैंड। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो आप इसे सोचिए कि आपके पास में, आपके आसपास कैसे एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्सल के। ओके, जब 2 लाइन को तीसरी लाइन कट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। बट वो कट कैसा करना चाहिए? उसने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करना चाहिए। सपोज मैंने अभी आपको टाइल्स का एग्जांपल दिया, तो आपकी टाइल्स कैसी होती है? इस टाइप से होती है टाइल्स। ओके, अब ये टाइल्स के पास में दूसरी टाइल्स बनेगी। ओके, सो ये जो 2 लाइन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो ये ट्रांसवर्सल हो गया बच्चों, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ओके, सो और ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है ट्रांसवर्सल? एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन टेक। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ हियर वी कैन गेट टोटल so many type of angle are there. Okay, see here। अब यहाँ पर आपको अगर 2 लाइन्स कट कर रही हैं तीसरी लाइन को, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 1 2 मिनट में और थोड़ा सा खाली जगह है, चलो इसकी कर लेते हैं। Okay, here there are total 4 angle 1 2 3 and 4. Again we can name them 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस बच्चों एक चीज़ देखो, ये 2 लाइन के बीच में आपको टोटल 4 एंगल दिख रहे हैं। दैट इज फर्स्ट इज एंगल 3, दिस 4 5 एंड 6, ये आपको अंदर की साइड दिख रहे हैं, 2 लाइन से छुपे हुए दिख रहे हैं। ओके, सो हम इन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। इन्हें कौन से एंगल बोलेंगे? इंटीरियर। ओके, बाहर की साइड कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, आउटसाइड आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं? दैट इज 1 2 7 एंड 8। सो यू कैन से दैट इट्स एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, अंडरस्टैंड। 3 4 5 6 is interior angle, 1 2 7 and 8 is exterior angles. Okay, now some more type of angle we can learn this chapter. Okay, 3 4 5 6 is interior angle, 1 2 7 8 is exterior angle. See here table में यहाँ पर दिया हुआ है। Again, now what is correspondence angle? So when we talk about correspondence angle होते क्या हैं उसे आप ध्यान से समझिए। what is correspondence angle? so if we talk about correspondence angle, तो correspondence angle क्या होगा? एक आप एक्सटीरियर एंगल लीजिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड मीन्स सी हियर, ये ट्रांसवर्सल है, एक साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये वाली है। कि सेम साइड का एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का पेयर हम क्या कहते हैं? उसे करस्पॉन्डेंस एंगल। ओके, एंगल 1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ओके, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल, सो इसका करस्पॉन्डेंस एंगल होगा एंगल 5। एंगल 2 का होगा एंगल 6। अब 3 क्या है? इंटीरियर एंगल है, 3 का एक करस्पॉन्डेंस एंगल होगा 7, 4 का होगा 8। ओके, अंडरस्टैंड। तो एंगल 1 का 5, एंगल 2 का 6, एंगल 3 का 7, एंगल 4 का 8। Okay, understand? I hope you are understand. These are called correspondence angle.
Okay, these are called correspondence angle. Okay, understand. Now what is alternate angles? First of all, we can talk about alternate angles. तो हम अल्टरनेट किसे बोलते हैं, पहले तो उससे समझिए अल्टरनेट क्या होता है. अल्टरनेट मीन्स हम सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. मीन्स हम लेते हैं एक इधर वाला एंगल, दिस वन, और एक तीसरा. ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल. एंगल 1 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मीन्स अंदर की साइड में ट्रांसवर्सल के दोनों, एक इधर आइदर साइड का और एक आइदर साइड का. मीन्स आपको ट्रांसवर्सल के दोनों साइड के एक एक एंगल लेना है. इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. दिस आर कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. एंड second pair is 4 and 6, that is called interior alternate angle. And what is exterior alternate angle? 1 का exterior alternate है 8, 2 का exterior alternate है 7. okay, understand. now last one, pair of interior angle on the same side of transversal. अब यहाँ पर same side transversal के interior angles कौन कौन से हैं, 3 and 5, 4 and 6. okay, understand. so you have to, I will give you a work. आप इस फिगर को ध्यान से देख करके पहले आपको पता करना है करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेम साइड के ट्रांसवर्सल के एंगल्स कौन से होंगे. ओके, अंडरस्टैंड. सो आपका होमवर्क है, आपको ये सारे एंगल्स याद करना है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस एंगल्स. आपको ये समझना है. ये वीडियो को बार बार देखिए. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, टेल मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. ओके, अंडरस्टैंड. हैव अ गुड डे.